तो बेटा we are going to start dynamics. Dynamics is that branch of physics that is deals with the study of cause of motion. Cause means what? Why actually the body changes its motion. Beta, motion means I have already explained you. Motion means what? Speed plus direction. So you know that why the speed of the body changes, because when we will apply any force, then the speed of the body will change. Or if we are applying force, then the direction will also change. So we can say that by applying force, we can change either the speed of the body or the direction of the body. So either this, because you know speed plus direction, speed which have different direction is called velocity. So either speed of the body will change or direction of the body will change. In both the cases, acceleration will be there. Now you see there, when acceleration will be there, then definitely force will act on the body. So beta, dynamics is what? This is the branch of physics which deals with the study of cause of motion. बेटा क्यों मोशन क्यों होता है? क्योंकि फोर्स लगता है. तो बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Our topic is Newton's laws of motion. बेटा इसमें न्यूटन्स ने, मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और ही आल्सो डिस्कवर्ड कैलकुलस. बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैलकुलस ही डिस्क्राइब मेनी फिनोमेना. और बेटा उन्होंने फोर्स को लेकर के बहुत बड़ा अपना योगदान दिया. उसमें से सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने 3 लॉ दिए. एंड बेटा उनका पहला लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ. उसको बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. बट लॉ ऑफ इनर्शिया वाज एक्चुअली गिवन बाय, you know who is the father of physics? Who is the father of physics? Galileo. But the concept of inertia was given by Galileo. Inertia. But what is inertia? This is the ability of the body. This is the ability of a body. उस क्षमता को कहते हैं ability of the body to resist the change, in a state of its motion, बेटा ये मोशन में जल्दी चेंज कब नहीं होगा? बेटा आपके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान है और मैंने बोला कि इसे भाई हटा दो. बेटा एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, मैंने बोला हटा भाई. आप हटाओगे क्या? इसे उठाओगे आप बहुत दूर फेंक दोगे. लेकिन ये बहुत बड़ा चट्टान को आपको हटाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो कह सकते हैं जो जितना ज्यादा मासिव बॉडी है उसकी इनर्शिया क्या होती है बेटा? मासिव बॉडी की इनर्शिया ज्यादा और लेस मासिव बॉडी की इनर्शिया कम. तो इनर्शिया के एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं डायरेक्ट केजी हो गए. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया बेटा? एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी. एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी, क्योंकि जितना बड़ा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया. और जितना बड़ा मास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बड़ा सा पत्थर है बेटा, आप उसे पुश कीजिए, बट आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे पुश करने के लिए. फिर भी मोशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है.
लेकिन एक छोटे से पत्थर को बोला कि बेटा उसमें मोशन दे दो, बेटा यू विल जस्ट पिक दैट बॉडी and you will throw it with some velocity and this will move to certain distance because its mass of this body is less. So this is what inertia. So if bigger the inertia, body will not easily change its motion. Bigger the mass, it will produce more resistance. It will not easily change its motion. Change its motion means बेटा velocity में change, या तो उसके direction, motion के direction में change, और या तो उसके speed में change. तो what is inertia? Inertia is basically the ability of the body to resist the change. वो अपने state of motion को नहीं change होना चाहता है. अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा. But if a body is at rest, it will remain at rest. इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, ऐसे मानिए बेटा ढलान है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और एक बहुत पतला सा एक रास्ता है, और रास्ते की जितनी चौड़ाई है ना बेटा, उतना ही बड़ा एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है. आप इतने छोटे हैं बेटा, आप क्या करेंगे, वो लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो बेटा आप इसके डायरेक्शन में नहीं जाएंगे कि आप फिर रोकेंगे इसे, because you know that you cannot stop this stone, huge stone, because the mass of this stone is very, very large. So to change the motion of any body, large amount of force is required. अब देखिए बेटा, तो दिस इज व्हाट बेटा, इसी लॉ को, इनर्शिया के लॉ को न्यूटन ने डिस्क्राइब किया. अब बेटा जो मूव कर रहा है स्टोन, ह्यूज स्टोन, उसके मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और वही एक क्रिकेट बॉल मैंने भेजा आपकी ओर, आप आराम से कैच कर लेंगे, because the mass of that cricket ball is very less in comparison to that huge stone. बेटा अब आइए न्यूटन के फर्स्ट लॉ. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बोला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, if a body is at rest, if a body is at rest, it will remain at rest. It will remain at rest. क्यों बेटा, रेस्ट में ही रहेगा. If you are not applying any force until, if a body is at rest, it will remain at rest. Or if a body is in motion, if a body is in motion, it will remain in motion. It will remain in motion. Remain in motion. तो बेटा अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे. जैसे स्पेस में जाइए बेटा, अर्थ पर तो बॉल मूव कर रहा है बेटा, बोलेंगे कि किसी ने टच नहीं किया, बॉल रुक गया. बेटा टच किया, अर्थ के सरफेस के फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया और वो रुक गया. बेटा अगर स्पेस में वही बॉल चला होता जहां कोई भी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स नहीं लग रहा है और किसी की फोर्स नहीं लग, तो बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा. बेटा इसके एग्जांपल देखिए, सैटेलाइट. बेटा अर्थ के चारों ओर अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एग्जांपल देख लीजिए, तो अर्थ जितनी फोर्स से सैटेलाइट को अपनी ओर खींच रहा है, बेटा सैटेलाइट को जब रॉकेट ले जाता है तो 2 या 2.5 चक्कर घुमाता है पहले उसे, और घुमा करके देखता है कितनी वेलोसिटी दिया जाए. जब वो टेंजेंशियल वेलोसिटी देता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो घूमता है. अब जब वो घूमता है तो उस पर रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड mv²/r बाहर की ओर होता है. तो अगर ये फोर्स अंदर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, ये बढ़ते जाता है. जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो रॉकेट क्या करता है, इसे यहीं पर छोड़ देता है सैटेलाइट को. उसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है. बेटा इतनी वेलोसिटी दे दिया कि जब नीचे की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर की ओर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, जितना आप आउटसाइड द
circular path, that is centrifugal force is equal to centripetal force by the gravitational force of earth. तो बेटा ये और ये कैंसिल, नेट फोर्स जीरो। अब जितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उतनी वेलोसिटी से घूमता रहता है सैटेलाइट जीवन। बेटा वो कभी भी अपनी वेलोसिटी को छोड़ता नहीं है सैटेलाइट। क्यों बेटा? नेट फोर्स जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया? उस सैटेलाइट को रॉकेट घुमाता है और इतनी तेज घुमा करके देखता है कि क्या, जब वो इतनी वेलोसिटी गेन कर लिया कि बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, जितनी वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते इतना वेलोसिटी कर देता है कि बाहर की ओर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर के ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। जैसे बेटा बाहर लगा 1 करोड़ न्यूटन, अंदर की ओर 1 करोड़, हो गया कितना बेटा? अपोजिट डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स जीरो। अब जिस वेलोसिटी से उसके बाद छोड़ देता है सैटेलाइट, रॉकेट छोड़ देता है सैटेलाइट को, अब सैटेलाइट उसी वेलोसिटी से घूमता रहता है। सैटेलाइट 10-12 वर्ष तक काम किया, खत्म, उसकी कहानी खत्म। बेटा वो भी घूमता रहता है, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष का, क्या बोलते हैं बेटा? रबिश ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का कचरा उसे कहते हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं होता। 10-15 वर्ष बाद तक, 10-15 साल तक काम करता है, उसके बाद तो फिर भी क्या, जो वेलोसिटी गेन कर दे उसी वेलोसिटी से घूम रहा है, वो घूमता ही रहेगा। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि बॉडी को एक बार कोई वेलोसिटी दे दिए और इस पर नेट फोर्स जीरो लग गया, तो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसी वेलोसिटी से घूमता ही रहेगा, unless and until any external force act on it. बड़ा अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। नाउ वी विल कम्स टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेटा बिफोर डिस्कसिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी शुड नो व्हाट इज एक्चुअली मोमेंटम इज। व्हाट इज एक्चुअली मोमेंटम इज? मोमेंटम बेटा मोमेंटम का सिंबल होता है P और ये वेक्टर साइन होता है। तो मोमेंटम इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू मूव, यानी कि मूव करने की क्षमता को बताता है। मोमेंटम इज द कैपेसिटी, मोमेंटम इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू मूव, बॉडी टू मूव, एक बॉडी की मूव करने की कैपेसिटी को बताता है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बेटा मोमेंटम केवल मास पर नहीं डिपेंड करता, इनर्शिया पर नहीं डिपेंड करता, बेटा वेलोसिटी भी। तो इस दोनों को कंबाइंड टर्म में बेटा इनर्शिया तो मास हो गया, और जब मूव करने लगा तो बेटा अब इसे मोशनल इनर्शिया कह सकते हैं। मोशनल, मूव करने की क्षमता, यानी कि मास भी ज्यादा है, बट मानिए कि बेटा 100 मीटर का रन हो रहा है, एनिमल्स की रन हो रही है, या बोलिए 100 मीटर का रन है बेटा, यहां एलिफेंट दौड़ रहा है, या हॉर्स दौड़ रहा है, और एक छोटा सा डॉगी दौड़ रहा है। बेटा दौड़ते हुए आएंगे, बेटा मैंने बोला कि जब एलिफेंट कंप्लीट करेगा तो आप रहना बेटा, इसे रोकने के लिए काउंट करना। बेटा हॉर्स को कोई और रोकेगा, बेटा यहां कोई और रोकेगा, बेटा आप यहां तैयार रहोगे क्या इसको रोकने के लिए? नहीं रहोगे, बोलोगे नहीं नहीं मैं तो यहां रहना है मुझे। क्यों? बेटा जानते हो इसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो मास बहुत ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। बेटा उसको रोकेंगे क्या? बेटा पापड़ बन जाएंगे, रोकने पाएंगे क्या? नो, because the mass of the, if the body is very massive, then to stop that body larger amount of force is required. बेटा अब ये कहानी होती है वेलोसिटी। बेटा 3 डॉगी दौड़ रहे हैं, मानिए 3 डॉगी दौड़ रहे हैं या 3 हॉर्सेस दौड़ रहे हैं,
इसकी स्पीड है बेटा 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा सबकी मास सेम है, सारे 500 kg के माने के हॉर्सेस, तो बेटा इसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि ये ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है तो बेटा उसे रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और जो धीरे से आ रहा है इसको रोकना सबसे आसान होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, कम। जैसे मानिए बेटा एक बुलेट जिसका कि मास बेटा हार्डली 25 ग्राम के करीब होगा, एक बुलेट का मास। बुलेट का मास मैंने हाथ में लिया और आपको आपकी ओर ऐसे फेंका तो बेटा आप उसे कैच कर लोगे, लेकिन उसे जब बंदूक से किसी को मारा जाए तो बेटा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम इतना ज्यादा होगा कि बॉडी के अंदर से पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। तो actually momentum is the product of mass and velocity of the body. So either the mass will be more, momentum will be more, or either the velocity will be more, momentum will be more. So we can say that momentum depend on mass as well as velocity of the body. So momentum depend on both this factor, mass as well as velocity. तो बेटा मैंने हम लोगों ने सीधे बताया कि momentum is the product of mass and velocity होता है, product of mass and velocity of the body. बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बताया कि बॉडी पर फोर्स लगा है या नहीं, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बताया कि बॉडी पर फोर्स लगा है तो एक्चुअली कितना लगा है भाई। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि फोर्स लगा है कि नहीं। बेटा अगर फोर्स नहीं लगा है किसी बॉडी पर तो उसके मोशन में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर फोर्स लगेगा तो मोशन में चेंज होगा। तो मोशन में कितना चेंज हुआ उसको देख करके हम क्या निकालते हैं बेटा, फोर्स। तो मोशन में चेंज यानी कि मोमेंटम में। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया मोशन मींस बेटा क्या होता है, मोमेंटम। इनर्शिया ऑफ मोमेंटम मींस इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशनल इनर्शिया किसे कहते हैं बेटा, मोमेंटम को। मोमेंटम को मोशनल इनर्शिया, यानी कि बेटा मास पर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर, तो मोशनल इनर्शिया। नाउ यू सी हियर बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। बेटा इसने क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा, मेजरमेंट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, the magnitude of force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, यानी कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ बेटा। तो यानी कि न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स लगा है बॉडी वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, d by dp, p फॉर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बड़ा चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज को इस तरह से लिखते हैं, रेट करते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डिफरेंशियल टाइम डेरिवेटिव। बेटा यहाँ एक कांस्टेंट पुट करते के, यानी कि ये देखा जाता है कि कितना टाइम्स मोमेंटम में चेंज होता है पर टाइम, कितना टाइम, तो देखा जाता है कि नहीं, के की वैल्यू होती है 1, के को बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1, इट मींस व्हाट बेटा, इसे 1 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का साइन देंगे बेटा, 1 इंटू दिस यही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम होगा उतना ही फोर्स लगेगा, उसका कुछ भी हाफ नहीं लगेगा, उसका कोई भी डबल नहीं लगेगा, उसका कोई भी 1/4 टाइम नहीं लगेगा, यानी कि जो मोमेंटम में चेंज होगा पर यूनिट टाइम उसी के बराबर फोर्स लगेगा। तो हमने इसे लिख डाला बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, मास इनटू वेलोसिटी।
बेटा हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जब तक हैं तब तक ये माना जाता है कि बॉडी की वेलोसिटी बहुत कम है। बेटा लेकिन जब लाइट किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका मास इंक्रीज करने लगता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय द आइंस्टीन। बट here in Newton's laws of motion we are discussing about the classical mechanics। classical mechanics क्या बेटा, बॉडी की वेलोसिटी लाइट के स्पीड से बहुत कम रहेगी तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा लिखेंगे if m constant, if m is constant, बेटा यहां लिखते हैं ऊपर। बेटा निचले इस क्वेश्चन को लिखेंगे if m is constant, m is constant। अगर m constant है तो बेटा क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, बेटा मास बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं और dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है बेटा एक्सेलरेशन। तब फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां होता है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट बेटा अगर ऐसा हुआ, इफ m is not constant, if m is not constant and u is and velocity is constant, तब क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखिए बेटा, v को बाहर और यहां dm अपॉन dt लिखेंगे। तो बेटा दो तरीके से आप फोर्स पढ़ना है। क्लास 9 में केवल ये फॉर्मूला पढ़े थे, अब क्लास 11 में ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल क्या है बेटा, इस फॉर्मूले का एग्जांपल, इस फॉर्मूले का एग्जांपल है बेटा। आप देखे होंगे टीवी में कभी भी जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उसके ऊपर पानी के फव्वारे डालती है। बेटा पानी के फव्वारे डाले जा रहे हैं और जिस पाइप से डाला जा रहा है उस पाइप का डायमीटर है बेटा, इसका रेडियस है बेटा 4 सेंटीमीटर और पानी की वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से पानी निकल रहा है बेटा, पानी की वेलोसिटी है, आप मानिए कि अगर 40 मीटर पर सेकेंड है, यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, kg per meter cube, kg per meter cube। तो बेटा सामने वाले सरफेस पर कि अगर 1 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर पड़ रहा है ये पानी, या ये बताइए कि अगर ये पानी निकलेगा तो कितना फोर्स डालेगा। ये पानी अगर यहां से निकलेगा तो किसी वाल पर पड़ रहा है, किसी वाल पर पड़ रहा है सामने, कितना फोर्स डालेगा, या फोर्स निकालना है, ये वाल पर कितना फोर्स डालेगा, या किसी ह्यूमन बीइंग पर जब अगर यही पानी पड़ रहा है तो कितना फोर्स डालेगा। तो बेटा वेलोसिटी तो नोन है बेटा, अब कितना मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड, बेटा ये फॉर्मूला, ये टी को कर दीजिए बेटा 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना पानी निकलेगा बेटा, तो अब इसे ट्यूब बनाइए, 1 सेकेंड में पानी v मीटर पर सेकेंड जाएगा वेलोसिटी के बराबर, और वेलोसिटी मींस डिस्टेंस मूव इन 1 सेकेंड। बेटा ये यहां से यहां आने में पानी को कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा बाहर। तो कितना पानी पर सेकेंड कितना आएगा बेटा, पानी पर सेकेंड क्या आएगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए बेटा, और ये सिलेंडर दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इजेक्टिंग आउट पर सेकेंड, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई और ए इंटू वी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इजेक्टिंग आउट पर सेकेंड। देखिए बेटा सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए एच क्या है बेटा, ये हाइट, इतनी दूर तक पानी 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा, ये वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इज द डिस्टेंस मूव इन 1 सेकंड, दैट इज वेलोसिटी, टाइम इज 1 सेकंड, वॉल्यूम। और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास, तो मास इज एक्टिंग पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, बेटा फॉर्मूला v इंटू वी स्क्वायर, रो ये v स्क्वायर याद रखिएगा। This is the formula for force applied by either the jet of water
or by blowing wind over any surface during a storm. बट जब हवाएं बहुत तेज से चलती है तो हवा की वेलोसिटी मालूम है, हवा की डेंसिटी मालूम है, इतने एरिया के वाल पर कितना फोर्स डालेगा इस फॉर्मूला से निकालते हैं. So beta, in next class we will discuss about Newton's third law of motion.